Now welcome again. Now today in this topic I am discussing exercise 5.6. Exercise 5.6 जो टेक्स्ट बुक है NCERT बुक है उसके जो क्वेश्चंस है 5.6 में वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. I will take question number 1, that is x is 80 square and y is 84. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है. डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या आपने किया है, आपने इसमें पहले डिफरेंशिएशन करना है dx विद रेस्पेक्ट टू t, वो है बराबर 2 ऐसे ही a ऐसे ही t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फिर से 2t, दैट विल बी 4at एंड आई विल कॉल इट फर्स्ट. और अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं dy by dt इज इक्वल टू a ऐसे ही दिस इज 4t क्यूब, दैट विल बिकम 4at क्यूब and call is 2. Now from first and second what we do, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, that is dy by dt is 4at and dt by dx is iska, this is 4at cube, this is 4at cube because dy by dt is 4at cube into dt by dx is the reciprocal of this, that is 1 by 4at. 4a and 4a will get cancelled, t and t will get cancelled, you will get t square. So the differentiation of y with respect to x is t square. This is how to differentiate first question of exercise 5.6. Now I will come to the question number 4. Second and third आप खुद कर सकते हैं, एट क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा क्या करना है. जैसे आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे x विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज dx by dt इज इक्वल टू 4 ओनली, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इट इज 4 इंटू टी रेज्ड पावर -1, देन dy by dt इज 4 एज इट इज -1 डाउन t रेज्ड पावर -2, दैट इज -4 by t स्क्वायर, यू कॉल इट सेकेंड. Now you have to find dy by dx, that is dy by dt into dt by dx. So dy by dt is -4 by t square and dt by dx is 1 by 4 and this becomes 1 by t square with the negative sign. देखिए यहाँ पर dy by dt is -4 by t square and dt by dx जो है इसका reciprocal, that is 1 by 4, 4 and 4 will get cancelled and you will get -1 by t square, right? So ये आपके हो गए question number 1 and question number 4. Now we'll come to another question. Now we'll take the question. This question is I will come to question number now I will come to the question number 8 of same exercise. देखो ये question कैसे है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. This is dx by dt. dx by dt is a ऐसे ही cos t की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस sin t प्लस, अब थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, log of tan of t by 2. log of tan of t by 2 है 1 upon tan of t by 2, then tan t by 2 की डिफरेंशिएशन secant square t by 2 और फिर t by 2 की डिफरेंशिएशन 1 by 2, like this. So it is a times minus sin of t plus 1 by tan, that is cot t by 2 into this is sec square of t by 2 into this is 1 by 2, then bracket close. So this will become a into minus sin of t plus, isn't this cos of t by 2 upon sin of t by 2 into 1 upon cos square of t by 2, because sec square of t by 2 is 1 upon cos square of t by 2 into 1 by 2. This is a into minus sin of t plus a cos इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, it will become 1 upon twice sin t by 2 into cos t by 2, right? This is a into minus sin t plus 1 upon this is sin t, because sin t is 2 sin t by 2 cos t by 2. हाफ एंगल्स में फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा जो होता है ये ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, इसलिए मैंने साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 की जगह लिखा 1 अपॉन साइन टी ओनली.
अब ये यहाँ आ जाएगा, इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू a as it is 1 minus sine square of t upon sine of t, and that will be a into cos square of t upon sine of t, you call it first. देखिए ये आपके पास आ गया, मेरा एक चीज आ गया कि dx by dt इस चीज के बराबर आ गया. यहाँ थोड़ा बहुत आपको देखना है, यहाँ ख्याल रखना है कि मैंने क्या किया, मैंने एक cos इस cos के साथ कैंसिल कर दिया, तो वहां रह गया ट्वाइस साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, यहाँ आ गया, उसको मैंने लिखा सिंपली साइन टी बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. अब मैंने एलसीएम लाया यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर टी आ गया प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई ये साइन टी, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर ऑफ टी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी इंटू ए. अब ये आ गया एक चीज. अब दूसरा चीज जो है यहाँ से, सो इट इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी, यू कॉल इट सेकेंड. मगर आपको निकालना है असल में dy by dx, so we have to find actually dy by dx. देखिए असल में हमें हर एक क्वेश्चन में dy by dx ही निकालना है. So dy by dx is dy by dt into dt by dx. What is dy by dt? That is a cos of t into dt by dx. dt by dx तो इसका रेसिप्रोकल है, ये तो dx by dt है, dt by dx इसका उल्टा होगा, तो ये साइन टी ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा a cos स्क्वायर ऑफ टी. देखिए a और a कैंसिल, a cos इसके साथ कैंसिल, साइन बाय cos बनेगा cot t by 2. सो दिस इज अवर रिजल्ट. सो cot of t by 2 is your answer. Once you differentiate y with respect to x, once you differentiate y with respect to x, इस चीज से देखो किस तरह से ये दो सवाल बन गए, एक अलग x with respect to t, ये तो थोड़ा लंबा है, लेकिन y विद रेस्पेक्ट की तो छोटा है. फिर हमने चेन रूल अप्लाई किया, देयरफॉर चेन रूल से हमारा ये चीज मिल गया. सो दिस इज योर आंसर, दैट इज cot of t by 2 इज योर रिजल्ट. सो इस रिजल्ट से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया. नाउ आई विल कम टू द अनदर क्वेश्चन. नाउ दिस इज माय 11th क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज 5.6 इसका मेरा 11th क्वेश्चन है. x is under root of a sin square of t and y is a cos inverse of t under root. देखो मेरा इस क्वेश्चन में एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा ताकि आसान हो जाएगा. जो नॉर्मली किताबों ने इसका सोल्यूशन दिया मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और मेथड आपको दिखाऊंगा. देखिए आप डायरेक्टली जाइए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. इट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin इनवर्स ऑफ t. सीधा डायरेक्ट x स्क्वायर इज a रेज पावर, बिकॉज स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी हम स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हियर आल्सो, यू विल गेट y स्क्वायर इज a cos इनवर्स ऑफ t. देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट हमारा खत्म हो गया. अब आइए आप इसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t. अब देखिए x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, फिर x की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t हो गया dx by dt. अब इसकी डिफरेंशिएशन a रेज्ड पावर साइन इनवर्स ऑफ t, देन log ऑफ a, देन साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर. राइट, इसको ऐसे लिखेंगे ट्वाइस x dx by dt is equal to what is a raised power sine inverse of t, that is x square. So you write here x square, then log of a divided by under root of 1 minus t square. एक x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, you will get dx by dt is x only, log of a divided by ये 2 नीचे आएगा, under root of 1 minus t square, you call it first. देखिए कैसे आपका dx by dt का वैल्यू आ गया. देखो सिंपल तरीके से मैंने दिखाया, आपने अंडर रूट अवॉइड किया, अंडर रूट कहीं नहीं है क्वेश्चन में. राइट, अब हम दूसरे साइड से आ रहे हैं. नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. we'll differentiate y with respect to t here. Same procedure we'll apply, same procedure, यानी 2y dy by dt is equal to a raised power cos inverse of t log of a, then cos inverse t की differentiation minus 1 over 1 minus t square. So 2y dy by dt is equal to a raised power cos inverse of t की जगह फिर से y square log of a divided by under root of 1 minus t square. अब ये y और ये y cancel, so you will get dy by dt is y log of a
whole divided by twice under root of 1 minus t square, you call it second. देखिए बिल्कुल ऐसे, यहाँ x log of a आ गया, यहाँ y log of a आ गया, यहाँ twice सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड की मदद से मुझे dy by dx दिखाना है इस चीज के बराबर है, लेकिन उससे पहले आप एक थोड़ा सा और एक नजर मार सकते हैं इसमें। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किया क्या, a रेज़ पावर cos इनवर्स t को मैंने वापस y स्क्वायर का वैल्यू लगा दिया, एक y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है ये नीचे आएगा, तो यहाँ खाली y log a डिवाइडेड बाई ट्वाइस ये चीज आ जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, a रेज़ पावर साइन इनवर्स t की जगह मैंने एक स्क्वायर लगा दिया, एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया। नाउ आई हैव टू फाइंड dy by dx, दैट इज dy by dt इंटू dt by dx, चेन रूल मैंने अप्लाई किया। अब देखिए dy by dt is y log of a divided by twice under root of 1 minus t square into dt by dx इसका उल्टा है, ये तो dx by dt है, dt by dx ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यानी twice under root of 1 minus t square divided by x log of a, यहाँ ये माइनस भी है इसके साथ, देखिए ये माइनस है बिकॉज ये माइनस है, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट माइनस y by x, सो माइनस y by x आपका रिजल्ट आ गया। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज माइनस y by x। ये थोड़ा बहुत मैं इधर भी लिखना चाहता हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ये आएगा y log of a divided by twice under root of 1 minus t square, twice under root of 1 minus t square divided by x log of a। ये चीज़ मैंने यहाँ फिर से लिखा है, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर माइनस y by x आ जाएगा, और वही आपका dy by dx है, दैट इज माइनस y by x। मैंने यहाँ भी बताया और यहाँ थोड़ा और इलॉबरेट करके बता दिया। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 5.6, and this was the end of this exercise. Now I will come to the next exercise. Now this is my exercise 5.7. This is the exercise 5.7. 5.7 जो है इसमें है find second order derivatives. I have already discussed second order derivative in the general, जब मैंने general discussion किया था आपके साथ, introduction दिया था derivatives का, double differentiations का। तो double differentiations किस तरह से की जाती है, वही सवाल है, find the second order derivatives। इसका सेकंड ऑर्डर लेना है, इसका सेकंड ऑर्डर लेना है। देखो कैसे करते हैं हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट y with respect x, it will be dy by dx, it will be 2x plus 3, then you differentiate again y with respect to x, तो आपको फिर से मिलेगा d2y by dx2। अब आप याद कीजिए 2x की डिफरेंशिएशन 2, 3 की 0, सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.7 का। इसी तरह से यहाँ अब यहाँ थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, y is x cos of x, इसमें u into v करना पड़ेगा। जब आप u into v करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट y with respect x, that is dy by dx is equal to x ऐसे ही cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन 1, so dy by dx will be minus x sin x plus cos x। ये हो गया पहला डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड हो गया, हमें आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी यू डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज d2y by dx2, डबल डिफरेंशिएशन। इसका फिर से u इंटू v, माइनस एक्स ऐसे ही साइन की डिफरेंशिएशन cos, फिर साइन एक्स ऐसे ही माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1, फिर cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, दिस विल बी माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस साइन ऑफ एक्स। देखिए किस तरह से हमने इसकी डबल डिफरेंशिएशन की, कि एक डिफरेंशिएशन करके फिर हमने इसकी दूसरी डिफरेंशिएशन की, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और भी ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सवाल और देता हूँ, देखिए 8th एंड 9th क्वेश्चन हम लेंगे, इनकी डबल डिफरेंशिएशन हम करते हैं। डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट x
दिस इज dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 plus x square. ये पहला है, because you know the differentiation of tan inverse x, inverse trigonometric functions 1/1 plus x square. तो हम लिखते हैं इसमें 1 plus x square raised power minus 1. फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं d2y by dx2. This is -1 down 1 plus x square raised power -2 into, फिर से -2 क्यों? बिकॉज -1 फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 की 0 और x स्क्वायर की 2x. सो इट विल बी -2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. देखिए किस तरह से हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट? अब हम इसका लेते हैं. देखिए dy by dx, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं dy by dx. log की डिफरेंशिएशन है 1/log x और फिर इस log x की 1/x, यानी dy by dx आपका जो आ गया that is 1/x log of x. That means x log of x raised power -1. अब फिर से डिफरेंशिएशन d2y by dx2. अब देखिए x log x is variable, so variable raised power constant, so power down, power को एक कम, then differentiation of x log of x, that is minus as it is x log of x का whole -2, then into. Now see the differentiation of x log x. Differentiation of x log x is u into v. So आप x को ऐसे रखिए, log x की differentiation 1/x, फिर आप log x को ऐसे रखिए, x की differentiation 1. So it will be 1 upon x log of x का whole square with negative sign, then 1 plus, because x and x will get cancelled, 1 plus log x. देखिए this is your answer. This is your answer. देखिए तरीका क्या है सॉल्व करने का. मैंने माइनस ऐसे ही रखा, इसको मैंने नीचे लाया, -2 पावर नीचे करके +2 पावर हो गया, ये +2 पावर आ गया, और यहाँ पर x और x कैंसिल, यहाँ 1 plus log x. So this is how to differentiate question number 8 and question number 9. यहाँ तक तो हम आ गए. अब हम और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखिए अब अच्छा सा सवाल हमने लिया, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 16th क्वेश्चन. इफ e raised power y, देखो बीच में से मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, यू कैन डू देम योरसेल्फ. हाँ, जिसमें आपको डिफिकल्टी आएगी, जो आप नहीं कर पाएंगे, वो आप मुझे कन्वे करेंगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, वो मैं अलग से दिखाऊंगा, राइट? आपको मेरा नंबर है सब उनके पास, यू कैन कॉल मी or you can WhatsApp my question, you can WhatsApp the question and I will give the solution. लेकिन फिलहाल ट्राई कर लीजिए, जो नहीं आएगा, जो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा. जैसे ये है e raised power y into x plus 1 is 1. Show that d2y by dx2 is equal to this thing. देखिए इसमें है ऐसा मसला, e raised power y into x plus 1 is equal to 1. That means e raised power y is 1 upon x plus 1. मैं ऐसे लिखता हूँ. फिर मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उससे थोड़ा ये मुझे आसान हो जाएगा. सो आई विल गेट लॉग ऑफ e raised power y is log of 1 upon x plus 1, and it will be y log of e is equal to log of x plus 1 raised power -1. That is only y, because log e is 1, and this will be minus log of x plus 1. Why minus? Because log m raised power n is n log of m. अब ये फंक्शन ये बन गई, देखो ये बिल्कुल ये चीज बन गया. इससे क्या हुआ, ये पावर सारे खत्म हो गए, सिर्फ हमारा y और लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया. अब हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सो dy by dx is equal to log की डिफरेंशिएशन होती है 1/x plus 1 सिंपली इंटू x की, तो 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास ये चीज आ गया. अब देखिए इसको मैं यहां लाता हूं. Now dy by dx is equal to -1 upon x plus 1. देखिए ये चीज जब हम यहां पहुंच गए एक डिफरेंशिएशन करके, अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं. देखिए कैसे मैं लिखूंगा, dy by dx is equal to minus times x plus 1 raised power -1. फिर से डिफरेंशिएट अगेन, तो आपको मिलेगा d2y by dx2 इज माइनस ऐसे, इसको -1 को नीचे x plus 1 raised power -2. -2 क्यों?
बिकॉज -1 उसको एक और कम हो जाएगा तो वो -2 बन जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू, कितनी बार माइनस आ गया, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया 1/x+1 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी -1/x+1 का होल स्क्वायर. इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दैट इज -1/x+1 का होल स्क्वायर. बट इफ यू हैव अ लुक, -1/x+1 किसके बराबर है, -1/x+1 है dy/dx के बराबर. सो आप लिखेंगे यहाँ पर इसकी जगह dy/dx और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर. देखिए कैसे होगा मसला. देखिए ये देखिए यहाँ पर ये स्टेप, जस्ट आई विल राइट दिस स्टेप अगेन. मैं इस स्टेप को थोड़ा दोबारा लिखना चाहता हूँ. सो इट विल बी -2 बार तो -1/x+1 का होल स्क्वायर. ऐसे देखिए मैंने इस तरह से लिखा है इसको. ये माइनस और माइनस 2 बार तो -1 एक ही लिखा मैंने, x+1 भी 2 बार तो मैंने नीचे लाया उसको, लेकिन एक ही स्क्वायर ऊपर लगा दिया. ठीक है. तो ये है ना असल में, दिस इज एक्चुअली -1 का होल स्क्वायर और 1/x+1 का होल स्क्वायर. ये एक्चुअली ऐसे है, उसी को मैंने इस तरीके से लिखा. अब -1/x+1 जो है वो dy/dx है, तो dy/dx का होल स्क्वायर. वही आपको दिखाना था कि d2y/dx2 is equal to dy/dx का होल स्क्वायर, that is dy/dx का होल स्क्वायर. This is your solution to question number 16. ये अब मेरा एक और सवाल है, that is question number 17, which is the last question of this exercise. That is, y is tan inverse of x whole square. Show that x²+1 whole square y2. You know y2 is the double differentiation. 2x into x²+1 y1 is the single differentiation, first derivative is equal to 2. मुझे ये चीज बताना है. सो देखिए मैं क्या काम करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट x. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y की डिफरेंशिएशन y1 है. अब यहाँ पावर डाउन tan इनवर्स ऑफ x, फिर tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1/1+x² राइट. देखिए पहले पावर डाउन, पावर को एक काम, 2 - 1 1 ही रहेगा. फिर 2 के बगैर tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन ये चीज आएगी, तो ये इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यह ऐसे आएगा 1+x² into y1 is equal to twice tan inverse of x. देखिए ऐसे बन गया राइट. अब यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x. अब थोड़ा ख्याल रखो, ये एक फंक्शन है 1+x² और y1 दूसरी फंक्शन है, तो हम इसको u into v यूज करेंगे. तो लिखिए आप 1+x² ऐसे ही, y1 की डिफरेंशिएशन y2 आएगी, फिर आप y1 ऐसे रखिए, अब इसकी डिफरेंशिएशन आपको 2x आएगी राइट. और राइट हैंड साइड पे 2 ऐसे आएगा, tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन होगी 1/1+x² राइट. नो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां लाइए तो ये बनेगा 1+x² into y2 और ये बनेगा 2x into ये 1+x² into y1 अपना, और यहाँ से सिर्फ 2 रहेगा. एंड वही तो दिखाना था शायद आपको, वही चीज तो आपको दिखाना था कि 1+x² का होल स्क्वायर, 1+x² का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप ये यहाँ लाएंगे इट विल बी 1+x² का होल स्क्वायर, y2 twice x 1+x² y1 is equal to 2. देखिए बिल्कुल यही रिजल्ट हमने दिखा दिया. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.7. अब इसमें मैं पहले जा रहा हूँ मिसलिनियस एक्सरसाइज पे. इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं पहले वो करते हैं, लेकिन बीच में एक और क्वेश्चन है, दैट इज एक्सरसाइज है, दैट इज 5.8. बट 5.8 इज एक्चुअली मीन वैल्यू एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम. उसका मैं सेपरेट इंट्रोडक्शन दूंगा कि वो क्या चीज़ है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, रोल्स थ्योरम क्या है, वो मैं दोनों थ्योरम्स बता के तभी वो एक्सरसाइज में अलग एक पूरा लेक्चर दूंगा उस पर. लेकिन बिफोर आई गो टू द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, आई विल कम टू द मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन डिफरेंशिएशन.